With such a big tournament being hosted in Pakistan after decades, Champions Trophy, we are just months away from that. Uski preparation bhi ab hote hue nazar aa rahi hai, stadiums bhi overhaul ho rahe hain. But Ali, how exciting it is, to have Champions Trophy come back to Pakistan, and of course we are defending the title. Yeah. So in that way, it adds so much more meaning, so much more value. What are you most looking forward to in the upcoming season? Well, I wish that happens. I'm really looking forward India play Pakistan in Lahore at Gaddafi Stadium. Agar aisa ho jaye, to I think that nothing like it. We all actually want this to happen. India Pakistan in Lahore. But overall, अच्छी चीज़ है. It's gonna grow. It's gonna help Pakistan cricket grow. बहुत चीज़ें जब इस तरह का tournament एक भी होता है तो बहुत चीज़ें बदलती हैं. A lot of things change. आपकी cricket एक तो सबसे पहले तो एक इतना पैगाम जाएगा कि हम एक secure मुल्क हैं. आप आके इतना बड़ा event हम manage कर सकते हैं. बट उससे पहले ही साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड इज ऑल्सो प्लेइंग है. तो आई गेस ये 2 से 3 अगले जो इवेंट्स हैं इन पाकिस्तान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए. एंड आई एम होपफुल कि ऐसा हो जाए और बगैर किसी ग्लिच के, बगैर किसी नजर लगे ये कंप्लीट हो जाए. और सब टीम्स की शमूलियत, सब एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा पॉइंट है. That's what we are hoping for. Yeah, as you said, like there's so much excitement to host such a big event. और जैसे आपने कहा, I mean, it's like step by step. It's that now big step of hosting the Champions Trophy. Imagine the fans in the stadium chanting for Virat Kohli, chanting for Rohit Sharma, for Bumrah. Imagine that Talk crowd. about nostalgia, right? Like I remember the last game I saw between India and Pakistan in Gaddafi, and banter between Punjabis and Dhoni smacking us everywhere, right? Never forget those days. One of the best memories I've had of cricket, of my life as well. Because that's the passion. You come across borders, you feel that energy in the air. You feel that love for cricket, and that's what that's something which erases those borders between people and unites you. That's the beauty of sport. That's the beauty of cricket. We want to take it to the world. So excited about that. And we all remember the scenes when last World Cup में जब पाकिस्तान टीम को जैसा reception मिला, जैसा welcome मिला, जैसा support वहाँ पे मिला. Of course, cricket is loved in India, so they do appreciate quality cricket wherever and whoever is playing it. But I think Pakistan अभी थोड़ा सा unfortunate है कि अभी तक एक agreement reach नहीं हो सका between the two boards, and we really hope that they do reach an agreement soon, because of course a lot is at stake in this tournament, and we wouldn't want कि कहीं और इसका हम बंटवारा करें, इस जॉय का, इस सेलिब्रेशन का. वी वांट टू होस्ट इट कंप्लीटली. बट अली, इस सेंस में वेयर डू यू सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड मूव नाउ, considering it's a very sensitive area and a lot of chairmen have come and gone and said different things, but now it's time to walk the talk. Correct. It's now or never probably, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि इंडिया रिलक्टेंट है. आपने एशिया कप में भी देखा कि आपने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया था. आई थिंक दिस इज द टाइम वेयर पाकिस्तान शुड स्टैंड अप एंड से ओके फाइन, इफ यू गाइज आर नॉट कमिंग, वी आर नॉट गोना टेक दिस हाइब्रिड. वी डोंट केयर अबाउट द मनी. इफ यू लूज मनी, वी डोंट केयर, बट यू हैव टू कम टू पाकिस्तान जस्ट टू शो दैट पाकिस्तान कैन अरेंज सच एन इवेंट. और पाकिस्तान को आना चाहिए. आई थिंक अभी पहला स्टेप अच्छा लिया है कि एटलीस्ट आप रिटर्न में तो कुछ लेके आए. अगर आप रिटर्न में लेके आते हैं तो इट गेट्स द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड के यार हाँ इस वजूहत सियासी हैं. और आईसीसी क्लियरली कहता है कि आपकी सियासी मुदाखलत नहीं हो सकती है क्रिकेट के अंदर. आपके बोर्ड सेपरेट होते हैं आपकी पॉलिटिक्स के साथ. तो अगर वो रिटर्न आता है कि आपकी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही, तो पाकिस्तान हैव अ पॉइंट कि जहाँ पे आप जिसके ऊपर आप बहस कर सकते हैं, या कहीं जाके कोई दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि भाईजान ये ऐसा हो रहा है. बट अगर इंडिया नहीं आता है तो पाकिस्तान शुड नॉट ऑप्ट फॉर हाइब्रिड मॉडल. मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को करना चाहिए. नुकसान अभी के लिए कर लेना चाहिए. आपको अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए. आपको खुद एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक ईगो होनी चाहिए कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी कल को वर्ल्ड कप आपने अरेंज करवाना है. और पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है वो पूरी दुनिया देखने चाहती है. ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा तो इंडिया का नुकसान नहीं होगा, इंडिया का भी नुकसान होगा. सो वन शुड मेक देम रियलाइज कि भाई अगर आप नहीं आ रहे हैं तो हम भी नहीं आएंगे. एंड वन शुड बी फर्म ऑन दैट. ये ना हो कि कल को आईसीसी के यार कोई गल नहीं, तुम चले जाओ, खैर है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए. जैसे हमने एशिया कप में देखा कि कितना नुकसान हुआ. वो टूर्नामेंट किसी तरह से मेमोरेबल शायद नहीं था फॉर एटलीस्ट फॉर पाकिस्तान फैंस, क्योंकि द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वाज कॉम्प्रोमाइज्ड इन द एंड. देयर वाज सो मच अननेसेसरी ट्रैवलिंग एंड द आइटिनरी वाज जस्ट सो डिफिकल्ट. आई मीन पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे तो हमने बड़ी देर बाद जाके गौर किया था. पहले हम यही देख रहे थे कि ये आज फ्लाइट है, कल मैच है, परसों वापस फ्लाइट है, कोलंबो, लाहौर, पिंडी. हसन, यहाँ से ये हाइब्रिड मॉडल जिस तरह अली ने कहा इज नॉट द वे फॉरवर्ड, एंड ऑफ कोर्स नॉट फॉर अ टूर्नामेंट लाइक चैंपियंस ट्रॉफी. यू नीड एवरीथिंग
organized and prepared months in advance. So I think about time they reach a decision. I'm all for what he said, that you need to take a firm stance on this to resolve this forever, rather than just going by tournament by tournament. I mean, अगर आप even political basis बना रहे हैं to go into International Court of Arbitration for sports, then you have a case in itself as well. What are you eventually trying to achieve? To make people watch India and Pakistan in Pakistan. That's the goal. That's a brilliant goal, right? So I'm all for having a firm stance which actually comes to a resolution, rather than having that, arm wrestling match as well, which will lead us to nowhere. But yes, our better minds are at play here who can come up with a solution, I'm sure, which can see us to the eventual end. Jo hamara goal hai eventually, to see Pakistan and India. This is some of the thoughts we are sharing of what we can come up with. But the point is clear and the point cannot be negated कि आपको एक ऐसा solution ढूंढना है जो कि forever के लिए हो. We need to now take that next step. And I'm all for it कि अगर आपको उसके लिए कुछ stance ऐसा लेना पड़े कि हाँ आपको कुछ tough choices make करनी पड़े, you need to do that as a board then. I think now is the time. Mr. Ali ने भी कहा कि now or never. I think this rather than this thing continuing, आगे आने वाले ना जाने कितने साल ये चीज continue रहेगी. I think it's better to nip it in the bud right now and have some decision because so much to look forward to in Pakistan cricket, and of course खेलता हुए direct series में आए. I think changes are good as long as we make long-term sustainable changes, and I think especially in terms of NOC, that's something we have to look at. And these are all format players, Ali, जिनके ऊपर ज़्यादा सख्ती हो रही है. बाबर है, रिजवान है, शाहीन है. अब इनको G20 के लिए नहीं दिया गया है NOC. नसीम को नहीं दिया गया for the 100. ये वो प्लेयर्स हैं जिन पे PCB जो है ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर रही है. Do you think इसका कोई इस तरह हसन ने बात की सस्टेनेबल सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको? Well, I don't know. I'm not really sure about it. मुझे ये लगता है कि एक जो स्टेप जो लिया जा रहा है या जिसके बारे में सोचा जा रहा है वो ये है कि आप NOCs को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के साथ लिंक कर रहे हैं. आई थिंक वो बहुत अच्छा आइडिया होगा कि अगर किसी भी प्लेयर को NOC खेलना है वो एक सर्टेन नंबर्स ऑफ फर्स्ट क्लास के गेम्स खेलेगा कि उसको NOC मिल सकेगा. आई थिंक ये अगर स्टेप ये लेने में कामयाब हो जाते हैं तो आई थिंक वो बहुत बहुत बेहतर आएगा. हो क्या जा रहा था कि आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो इग्नोर हो रही थी बहुत बुरे तरीके से. अब हार्डली मैं 3-4 साल से कवर कर रहा हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट. आई गो ऑल अराउंड. आई हार्डली सॉ एनी ऑफ दीज 11 जो पाकिस्तान से खेलते हैं वो आके आपके डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हो. एक तो वो खुद ग्रूम नहीं हो रहे थे, एक उनकी वजह से जो कि लड़का एक नया लड़का खेलने आता है जो उनसे सीख सकता है वो भी नहीं सीख पा रहा था. आई थिंक दैट स्टेप अगर ये लेने में कामयाब हो जाते हैं, इफ दे कैन लिंक दोज NOCs विद डोमेस्टिक क्रिकेट, वो बहुत बेहतर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए होगा. एंड आई एम ऑल अप फॉर इट कि अगर आप वो NOC को लिंक कर दें कि आप कंपलसरी कर दें किसी जिसको भी NOC चाहिए आप जाएं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, 5 मैचेस खेलें, उसके लिए आप परफॉर्म करें, आप आगे खेल जाएं. क्योंकि अगर आप 5 लाइक सलमान भट्ट ने बात की थी कि अगर आप 5 फर्स्ट क्लास के मैचेस खेलते हैं तो वो आपकी फिटनेस टेस्ट होती है, आपका स्किल टेस्ट होता है, आपकी टेक्निक टेस्ट होती है, तो आप ऑटोमेटिकली क्रिकेट आपकी इंप्रूव हो जाती है. तो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रिस्पेक्ट दें एंड देन यू कैन गो प्ले और T20 क्रिकेट. देयर इज नो प्रॉब्लम. क्योंकि जिन लीग्स की अभी हम बात कर रहे हैं, एज एन एग्जांपल दी 100 की बात करें या G20 की बात करें, इस वक्त पाकिस्तान के कैलेंडर में कुछ भी क्लैश नहीं कर रहा विद दीज लीग्स. सो इट मेक्स यू थिंक वेदर दिस इज रियली फॉर द प्लेयर्स बेनिफिट और वेदर इट्स जस्ट समथिंग टू मेक to create an issue out of. What is your opinion on that? I think it's there to sort of like lay down a marker, but I think that marker should be sustainable and for everybody, and it needs to look at the future as well. I mean, I'm all for कि अब से इस तरह चीजें चलेंगी. जिस तरह अली ने बात की, I agree with it. देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छे प्लेयर्स, आपके इंटरनेशनल टॉप क्वालिटी प्लेयर्स खेलने का बहुत अच्छी चीज है, बट जो T20 स्पेशलिस्ट है, he doesn't need to play domestic cricket, right? डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से जो 50 ओवर खेल रहा है या टेस्ट खेल रहा है, एब्सोल्युटली ऑल फॉर इट. तो आपको लगता है आजम खान को जरूरत नहीं है डोमेस्टिक खेलने की, एंड ही शुड रादर गेट दैट एक्सपीरियंस इन लीग्स? I think if Azam wants to make a claim for himself in the 50 over format, he definitely needs to play domestic cricket. Absolutely. In terms of जो अली ने बात की कि वो टॉप क्वालिटी प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो लीग्स के लिए अगर उनकी एलिजिबिलिटी बनती है वो भी तरीकाकार बनाया जा सकता है, मगर आप उनको कॉम्पनसेशन तो दें. डोमेस्टिक क्रिकेट की पे इस वक्त इतनी कम है इन टर्म्स ऑफ व्हाट आवर बोर्ड पेज देम. आवर बोर्ड इज आई थिंक 4th richest in the world right now, minutely behind England and Australia, right? But in terms of our domestic payments towards player
and timely payments. That's another key issue. We are far, far away. I'm sure Ali also has a lot to add on this, given कि आपने कितना domestic cricket cover किया, players I'm sure आपसे भी discuss करते होंगे. Is this really an issue that creates that barrier between players wanting to opt for domestic cricket matches? Look, देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना, अब लेट्स से अगर आप टॉप 11 की बात करें या टॉप 15 की बात करें, आई थिंक वो उनको खुद से खेलना चाहिए. दे आर अर्निंग मनी लीग्स खेल के, पाकिस्तान से खेल के. लेकिन अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते हैं तो आप अपना स्किल को डेवलप कर रहे हैं. आजम खान का आपने भी जिक्र किया. आई थिंक ही शुड प्ले क्रिकेट. 4 डे क्रिकेट उसको खेलनी चाहिए, क्योंकि जब आप 4 डे क्रिकेट खेलते हैं तो आप T20 क्रिकेट के लिए ऑटोमेटिकली रेडी हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपने स्किल पे इतना काम करते हैं, आप डिफरेंट सिचुएशन से गुजरते हैं, आप स्ट्रेटेजाइज करते हैं, आपको रन्स बनाने आते हैं कि आपने रन्स कैसे बनाने हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन से कैसे गुजरना है, डिफिकल्ट पिच कंडीशंस में कैसे खेलना है. तो यू नो ऑल दीज ट्रेड्स व्हेन यू गो टू डोमेस्टिक क्रिकेट. तो आई थिंक जिसने भी जो भी लेवल की क्रिकेट खेलनी है, T20 क्रिकेट हो, वनडे हो, टेस्ट मैच हो, आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट इज वेयर, जैसे वो कहते हैं ना कि रगड़ा जो आपको लगता है, जहाँ से आप बनते हैं क्रिकेटर, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही है. और आई थिंक शादाब की बात कर लें, आजम की बात कर लें, वाई दे आर स्ट्रगलिंग एट टॉप लेवल, बिकॉज वो इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते हैं. और अगर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, 4 दिन का रगड़ा लगाओ, पूरा सीजन खेलाओ, आप देखिए वो कैसे उनकी बॉलिंग में फ़र्क आता है, आजम की बैटिंग में फ़र्क आएगा. तो रिगार्डलेस ऑफ पैसों को मैं बाद में सेकेंडरी रखता हूँ. आपको अपना स्किल डेवलप करना है पहले, और उसके लिए फर्स्ट क्लास से क्रिकेट बेसे बेहतर कुछ नहीं है. But that in itself has become I am all for what you're saying. But that in itself, the monetary thing has become a big part of it, isn't it? So for instance, अगर एक बंदा पूरा कायदे-आज़म ट्रॉफी खेलता है पूरा सीजन और वो 5.5 लाख रुपया सिर्फ कमाता है, hypothetically speaking, which is more or less what they do earn. I mean, that in itself is not competitive enough as a cricketer to call yourself a professional. I mean, they're the elite of Pakistan, right? Correct. But they're centrally contracted. इस सब के अंदर भी हम central contract की relevance को अब कहाँ देखते हैं? क्योंकि now world cricket is also moving towards this hybrid sort of a thing, जिसमें players खुद opt out कर रहे हैं central contract लेने से, ताकि उनके पास वो liberty हो कि वो जहाँ खेलना चाहते हैं दुनिया में खेलें और वो bound ना हो. PCB ने भी अब central contract को ना 1 साल के अंदर renew करने का फैसला किया, rather than the 3-year central contract that these all format players and all of our players enjoy in different categories. So एक overhaul वहाँ पे भी आ रहा है कि yearly renew करेंगे, yearly देखेंगे कि क्या प्लेयर है, किसने कितना परफॉर्म किया, उसकी बेसिस पे फिर उसकी कैटेगरीज. डू यू थिंक ये अब व्हाट डायरेक्शन आर वी मूविंग टुवर्ड्स? पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का अब क्या रेलेवेंस रह गया? I think in terms of category A, category में जितनी slots हैं, in terms of a fight to become that player, I think that's a good thing. But in terms of having limit of that time कि कितनी देर के लिए वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और वो कितनी जल्दी रिन्यू होगा, उसकी टर्म्स क्या होंगी, इट्स नॉट अ बैड थिंग. देखें, एलीट प्लेयर ने एलीट प्लेयर की ही ट्राई करनी है, उसने कोशिश करनी है कि मेरा बेंचमार्क वही रहे इफ दे वांट टू बिकम अ सर्टेन पार्ट ऑफ दैट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ें अगर ऊपर नीचे होती हैं, यहाँ वो प्लेयर्स के मतलब के लिए नहीं है. प्रॉब्लम इज दुनिया के हर क्रिकेट बोर्ड में प्लेयर्स यूनियन है. देयर इज नो प्लेयर्स यूनियन इन पाकिस्तान एट द मोमेंट. रीजन इज, अगर आपने बात की दे कैन ऑप्ट आउट ऑफ दिस, या प्लेयर्स कैन टेक अ स्टैंड. पैट कमिंस कहता है कि जी मुझे आप लीग नहीं खेलने देंगे तो we 5 players are going to say we're not going to play cricket anymore, and they can actually then sit on the table and negotiate and have their say. And didn't this happen just a few months back in Pakistan cricket as well, where we saw a few players who were adamant on the fact कि उनके मर्जी के terms दिए जाएं कॉन्ट्रैक्ट में, और फिर वो माने भी गए. I think आप बेहतर बता सकेंगे, is this the way forward where players need to come together and decide? क्या लगता है, because ये थोड़ा सा अनयूजुअल है फॉर पाकिस्तान क्रिकेट. देखिए वो तो अभी हम नए हैं, सब आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स को एंड दीज एजेंट सिस्टम और ये सब कुछ बहुत नया है क्रिकेटर्स के लिए. तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ आगे जाना है, आहिस्ता आहिस्ता वी गेटिंग देयर. बट आई थिंक सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम इस टॉपिक पे बात करें तो आई थिंक प्लेयर्स हमारा प्रोडक्ट हैं. अगर मैं अब जैसे अभी हसन ने भी वो बात की जो बात कर रहे थे, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको फाइनेंशियल या मॉनिटरी बेनिफिट नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल होना चाहिए. बट वाई आई से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए, वो सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के लिए है. आप ऐसा एक अपकमिंग क्रिकेटर उसके लिए शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट समबडी हु इज एस्टैब्लिश्ड, जो कॉन्ट्रैक्ट में है, जो लीग्स खेल रहा है, जो PSL खेल रहा है, आई थिंक उसके लिए अपनी गेम को इन्हांस करना शुड बी द प्रायोरिटी, क्योंकि गेम इन्हांस होगी तो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेंगे और इधर उधर वाले मिलेंगे. एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आई थिंक ऑल्दो काफी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और क्या चाहिए, आप काफी रिलैक्स हैं, मतलब अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. और अब आप क्या चाहते हैं PCB से? देखिए मैं यही चाहता हूँ कि जो टॉप कैटेगरी के प्लेयर्स हैं सिर्फ वो डोंट मेक, यू कैन टॉक अबाउट पीपल प्लेइंग
first class cricket, why don't they go play county cricket, right? They, Hassan Ali, Shan Masood, they can go play county cricket. But why wouldn't you like them to play domestic cricket and create that competitive level here? I Again, was just offer coming, them more money. I was just coming to that, कि the level of competition, the quality of competition that Pakistan domestic cricket offers at the moment, do you think it is, of course, we know it is not at par with what is being offered around the world, but इसका क्या solution है? टोनी हेमिंग को हायर किया है, जी क्यूरेटर, टॉप क्यूरेटर है दुनिया के, वो अब आईसीसी के लेवल पे काम कर चुके हैं इतने साल, अब वो अपना क्यूरेटिंग एक्सपीरियंस लेके पाकिस्तान आए हैं, 2 साल के लिए उनको अपॉइंट किया गया है. अली, इसके पीछे क्या थिंकिंग है? क्योंकि आई एम श्योर ये भी एक रोड मैप ही है टुवर्ड्स इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ कंपटीशन. हाउ विल दिस हेल्प गोइंग फॉरवर्ड? बिकॉज अब पीसीबी के सारे डिसीजंस जो है ना आहिस्ता आहिस्ता दे मेकिंग सेंस बिकॉज दे आर पुटिंग सो मच एम्फेसिस ऑन इंप्रूविंग डोमेस्टिक क्रिकेट राइट नाउ. देखिए, एटलीस्ट दे ट्राइंग. मुझे ये अच्छी बात लगी कि कुछ कोशिश कर रहे हैं. इससे पहले हमने देखा था कि शायद रबीज भाई ने कोशिश की थी कि आप पिचेस को लेके आए, बट वो शायद इतना प्रैक्टिकल आइडिया नहीं था, वो नहीं हो सका. कदाफी स्टेडियम और नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में दोनों, कदाफी में, हाँ दोनों में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑस्ट्रेलियन सॉइल की 2 पिचेस तैयार हैं, बट वहाँ पे आप क्रिकेट खेलते ही नहीं है, उसको तैयार ही नहीं करते हैं. वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट विमेंस मैच, इसके अंदर एक मैच के अंदर वो सॉइल वाली पिच जो है वो यूज़ की गई थी और उसके अंदर अच्छा एक्स्ट्रा बाउंस मौजूद था. तो अगर हम तैयार करना चाहते तो ऐसा नहीं है कि हमारे क्रिएटर्स को करना आता नहीं है, करना चाहते तो डेफिनेटली आई एम 100% श्योर कि वो पिचेस तैयार हो सकती है. अब वो आएंगे, डेफिनेटली उनका एक ऑस्ट्रेलियन एक एक्सपोजर डिफरेंट होगा, वो आएंगे, वो क्या चेंजेस लेके आते हैं. बट आई एम ग्लैड कि वो 2 साल के लिए आ रहे हैं ताकि उनको एक पूरा टेन्योर मिलेगा कि भाई आप करके दिखाइए जो कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि 15 के लिए आए, क्योंकि 15 दिन के आने से कुछ चेंज हो नहीं सकता है. तो वो आएंगे, देखते हैं. आई एम ग्लैड. और मैं चाहता हूँ कि जो क्रिकेट है ना वो ये 3-4 स्टेशन से हटके भी हुआ करे, क्योंकि सारी क्रिकेट हम देखते हैं. आप मेंस क्रिकेट देख लें, अंडर 19 क्रिकेट देख लें, विमेंस क्रिकेट देख लें, ये हमारे 4 स्टेशन पे होती है. या कदाफी में होगी, या पिंडी स्टेडियम में होगी, या मुल्तान चले जाएंगे, या कराची में होगी. तो वो पूरा साल क्रिकेट कर करके वो पिचेस भी थक जाती हैं. तो जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो वो थकी हुई पिचेस होती हैं, वो मिट्टी भी थक जाती है. तो अगर आप क्रिकेट को थोड़ा लेके जाएंगे, फैसलाबाद ले जाएं, बावलपुर ग्राउंड इस्टेब्लिश करें, पेशावर से आलकोट ले जाएं, मतलब आप कई इन 4 स्टेशन से क्रिकेट इन गुजरात. हाँ, मतलब तैयार किया जाए एग्जैक्टली. इफ यू रिमेंबर, हमने फैसलाबाद में की थी यार, क्रिकेट इकट्ठे की थी, वो अच्छी पिच थी, वो मतलब अच्छा कैरी हो रहा था. तो थोड़ा इनको भी रेस्ट मिल जाएगा और थोड़े और स्टेशंस भी आपके तैयार हो जाएंगे. आई बिलीव पिंडी का बहुत अच्छा पिच है. अब जब वो आज से कुछ साल पहले जो टेस्ट मैच हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, अब वो आपने तैयार किस तरह करना है ये तो अब आपकी मर्जी है. अब वो अच्छा वाला, हमारे पूरे पाकिस्तान में सबसे तेज और सबसे बाउंस वाला पिच पिंडी वाला कंसिडर किया जाता था, बट इंग्लैंड के खिलाफ आपने उसको तैयार ही ऐसा किया कि ना वो बॉलर्स के काम आया, ना वो बैटर्स के काम आया, वो डेड सी क्रिकेट हो गई थी. तो ये तो अब आपके ऊपर है कि आप वो पिचेस को कैसे तैयार करना चाहते हैं. आई होप, आई वुड लाइक टू सी सम एक्स्ट्रा बाउंस, कि जहाँ पे थोड़ा बैटर्स को भी मजा है बैटिंग करने का और बॉलर्स को भी मजा है बॉलिंग करने का. बट आई थिंक ये अच्छा एक हसन एक वे फॉरवर्ड है डोमेस्टिक की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए. आप पहले पिचेस को बेहतर करें, और जैसे अली ने पॉइंट आउट किया कि नॉट जस्ट मोर एस्टैब्लिश्ड ग्राउंड्स एंड स्टेडियम्स, बट यू नो वी नीड टू लुक एट अदर ऑप्शंस ना. आपने भी छोटे शहरों की बात की है, इसमें गुजरावाला स्टेडियम, फैसलाबाद स्टेडियम, वेयर एल्स कैन वी see cricket spreading I in think Pakistan? Peshawar, there's a stadium being built there, and Quetta, we've done Quetta, cricket in Quetta, Quetta as excellent well. pitch, excellent Oh my pitch. God! Yeah. I think that's one of the best pitches in Pakistan. Yeah. It's at high altitude. The air is thin. The क्यों ball नहीं travels. कराते मैचेस क्वेटा में फिर? I think we're slowly getting there. जिस तरह आपने कहा, At least domestic sometimes there's so much to take on, right? And in the last episode, we cover how chairmanship changes, and then there's like overhaul, then we forget about like these venues maybe. Yeah. और जिस तरह टोनी हेमिंग की आपने बात की, the most thing I am excited about is जिस तरह इन्होंने कहा कि 2 साल का टेन्योर है, तो आप इंडिया जाते हैं, आपको पता है रेड सॉइल, रेड क्ले और जो है ब्लैक क्ले है, तो देयर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ क्रिकेट दैट्स प्लेड देयर, राइट? इंडिया स्पिनर्स खिलाएगा, इतना इतना टर्न होगा. आप ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ पिचेस. आप इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, एवरीबडी हैज एन आइडेंटिटी. दैट्स द थिंग आई एम लुकिंग मोस्ट फॉरवर्ड टू, कि टोनी हेमिंग के आने से अब पाकिस्तान क्रिकेट की या पाकिस्तान के वेन्यूज की, पिचेस की क्या आइडेंटिटी बनती है. Because we have a new coach there, we have a captain there, they both have a say on what type of pitches are going to be played. जिस तरह उन्होंने कहा कि रावलपिंडी की wicket भी was a certain the reason why that pitch was the way it was. So that's the most important thing for me, what kind of an identity we create. And Tony Hemming has been, you know, the head curator for the ICC. दुबई में भी जब हमारा वो home venue था 2007 to 2017. So I'm really looking forward to that as well.